وقت دولت ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس دولت کو دوسروں کا سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے ادیب کی ہے جو لکھنا چاہتا ہے، سوچنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کے قریبی، اس کے دوست اسے سکون سے جینے نہیں دیتے۔ اردو ادب کے ممتاز مصنف سجاد حیدر یلدرم کی یہ تحریر ایک دل کو چھو لینے والا طنز ہے۔ ہمارے معاشرے کی اس بیماری پر جو وقت کی بے قدری، فضول مداخلت اور دوستی کے نام پر ذہنی بوجھ ہے۔ سنیے یہ افسانہ، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ صرف ایک ادیب کی فریاد نہیں، بلکہ ہر اس انسان کی جو اپنی تنہائی، اپنا سکون اپنے ہی لوگوں کے شور میں کھو چکا ہے۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری سپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دہرا دی جاتی تھی۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا تو میں ایسا سخت دل نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ لکھی جائے۔ چنانچہ وہ سپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روکیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو، میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں، آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے۔ اس کے صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود رونی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی حالت قابل رشک کس وجہ سے ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں۔ اس کا کوئی دوست نہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا۔ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا یہ اس کا قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ملے کہ میں تنہائی میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، یا جوار اسپیچ مجھے کل دینی ہے۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کے دوست راستے میں نہ ملیں گے اور یہ نہ کہیں گے کہ بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو؟ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خامخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو ہک کرنا نہیں پڑتا؟
क्या दोस्तों के यहाँ मुलाकात को जाना नहीं पड़ता? अगर ना जाए तो कोई शिकायत नहीं करता? अगर इन सब बातों से वो आजाद है तो कोई ताज्जुब नहीं कि हट्टा कट्टा है और मैं कमजोर और दुबला पतला हूँ। या अल्लाह, क्या इस पर भी वो शुक्र अदा नहीं करता? अल्लाह जाने वो कौन सी नेमत चाहता है। लोग कहेंगे कि इस शख्स के कैसे बेहुदा ख्यालात हैं। बगैर दोस्तों के जिंदगी दो भर हो जाती है और ये उनसे भागता है। मगर मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता। मैं जानता हूं कि वो मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आते हैं और मेरे खैर तलब हैं। मगर अमली नतीजा ये है कि मेरे अहबाब का इरादा होता है मुझे फायदा पहुंचाने का और हो जाता है मेरा नुकसान। चाहे मुझ पर नफरीन की जाए, मगर मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज तक मेरे सामने कोई ये साबित ना कर सका कि अहबाब का एक जम्मी गफीर रखने और शनासाई के दायरे को वसी करने से क्या फायदा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ काम करना है और बातों ही में उम्र नहीं गुजारनी है तो बाज निहायत अजीज दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे इससे मेरे दिल पर कैसा ही सदमा हो। मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्जा हैं, जिन्हें मैं बातूनी दोस्त कहता हूँ। ये निहायत माकूल आदमी है और मेरी इनकी दोस्ती निहायत पुरानी है और बेतकल्लुफी की है। मगर हजरत की खिलकत में दाखिल है कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता। जब आएंगे शोर मचाते हुए, चीजों को उलट पलट करते हुए। गर्ज के उनका आना भूंचाल के आने से कम नहीं है। जब वो आते हैं तो मैं कहता हूँ कि कोई आ रहा है, कयामत नहीं। उनके आने की मुझे दूर से खबर हो जाती है, बावजूद ये कि मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है। अगर मेरा नौकर कहता है कि मियाँ इस वक्त काम में बहुत मसरूफ हैं, तो वो फौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि कमबख्त को अपनी सेहत का भी तो कुछ ख्याल नहीं। नौकर की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, खैराती कब से काम कर रहे हैं? क्या बड़ी देर से? तौबा तौबा। अच्छा बस 1 मिनट ही इनके पास बैठूंगा, मुझे खुद भी कहीं जाना है। छत पर होंगे ना? मैं पहले ही समझता था। ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं और दरवाजा इस जोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आकर लगा हो। आज तक उन्होंने दरवाजा खटखटाया नहीं और आंधी की तरह दाखिल होते हैं। आहा, आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया है। मगर देखो देखो, मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो। मैं हरज करने नहीं आया। खुदा की पनाह, किस कदर लिख डाला है। कहो तबीयत तो अच्छी है। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। वल्लाह, मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक ऐसा शख्स भी है जो मजमून निगार है और मजमून निगार के लक़ब से पुकारा जाता है। लो, अब जाता हूं मैं, बैठूंगा नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरने का। तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी थी। अल्लाह हाफिज। ये कहकर वो निहायत मोहब्बत से मुसाफा करते हैं और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। ये तो अलहदा रहा, अपने साथ मेरे कुल ख्यालात को भी ले जाते हैं। ख्यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ, मगर अब वो कहाँ। और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज्यादा नहीं रहे, ताहम वो अगर घंटों भी रहते तो इससे ज्यादा नुकसान ना कर पाते। क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? मैं इससे इनकार नहीं करता कि मेरी उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। ताहम मैं उन्हें छोड़ दूंगा, हाँ छोड़ दूंगा, अगरचे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े। और लीजिए, दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं। ये बाल बच्चों वाले हैं और रात दिन उन्हीं की फिक्र में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं, जब मैं काम से फारिग हो चुका होता हूँ, लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल यही चाहता है कि 1 घंटा आराम कुर्सी पर पड़ा रहूं। मगर तहसीन आए हैं, उनसे मिलना जरूरी है। उनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मजमून है ही नहीं। मैं कितनी ही कोशिश करूं, मगर वो इस मजमून से बाहर नहीं निकलते। अगर मैं मौसम का जिक्र करता हूं तो वो कहते हैं, हाँ भाई, बड़ा खराब मौसम है, इस वजह से मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया है, मंजली लड़की खांसी में मुब्तला है। अगर सियासत या अदब के मुतालिक गुफ्तगू शुरू करता हूं तो तहसीन फौरन माजरत पेश करते हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार पड़ा है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ के अखबार पढ़ूं। अगर किसी आम जलसे में आते हैं तो अपने लड़कों को जरूर साथ लिए होते हैं और हर एक से बार बार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती। कभी कभी नब्ज देख लेते हैं
और हाँ, वहां भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का जिक्र करते हैं। इसी तरह मेरे मुकदमेबाज दोस्त हैं जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपने फरीक़े मुखालिफ की बुराइयों और जज साहब की तारीफ या मजम्मत के और कोई मजमून ही नहीं मिलता। मन जुमला और बहुत से मुख्तलिफ किस्मों के दोस्तों के मैं मोहम्मद शाकिर खान साहब का जिक्र खुसूसियत से करूँगा, क्योंकि वो मुझ पर ख़ास इनायत फरमाते हैं। शाकिर खान साहब मौज़ा सलीमपुर के रईस और ज़िला भर में निहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। उन्हें अपनी लियाकत के मुताबिक लिटरेचर का बहुत शौक है। लिटरेचर पढ़ने का इतना नहीं जितना लिटरेरी आदमियों से मिलने और तारुफ पैदा करने का। उनका ख्याल है कि अहले इल्म की थोड़ी सी कद्र करना उम्रा के शायान शान है। एक मर्तबा मेरे यहाँ तशरीफ लाए और बहुत इसरार से मुझे सलीमपुर ले गए, ये कहकर कि शहर में रात दिन शोर व गुल रहता है, देहात में कुछ अरसा रहने से तब्दीली आबो हवा भी होगी और वहाँ मजमून निगारी भी ज्यादा इत्मीनान से कर सकोगे। मैंने एक खास कमरा तुम्हारे वास्ते आरास्ता कराया है जिसमें पढ़ने लिखने का सारा सामान मुहैया है। थोड़े दिन रह के चले आना, देखो मेरी खुशी करो। मैं ऐसे मोहब्बत आमेज इसरार पर इनकार कैसे कर सकता था। मुख्तसर सा सामान पढ़ने लिखने का लेकर मैं उनके साथ चल पड़ा। एडिटर मुआरिफ से वादा कर चुका था कि एक खास अरसे में उनकी खिदमत में एक मजमून भेजूंगा। शाकिर साहब की कोठी पर पहुंचकर मैंने कमरा देखा जो मेरे लिए तैयार किया गया था। उसकी खिड़की पाए बाग की तरफ खिलती थी और निहायत ही दिलफरेब कुदरती मंजर मेरी आंखों के सामने होता था। सबको नीचे नाश्ते की गर्द से बुलाया गया। जब दूसरा प्याला चाय का पी चुका तो कमरे को जाने के लिए उठा ही था कि चारों तरफ से इसरार होने लगा कि हैं, कहीं ऐसा गजब ना करना कि आज ही से काम शुरू कर दो। अपने दिमाग को कुछ तो आराम दो और आज का दिन तो खासकर इस काबिल है कि सीनरी का लुत्फ उठाने में गुजारा जाए। चलिए गाड़ी तैयार कराते हैं, दरिया पर मछली का शिकार खेलेंगे। फिर वहां से 2 मील पर अहमदनगर है, आपको वहां के रईस राजा तालिब अली साहब से मिलवाएंगे। मेरा माथा वही ठनका कि अगर यही हाल रहा तो यहाँ भी फुर्सत मालूम। खैर, सैकड़ों हीले हवालों से इस वक्त तो मैं बच गया और मेरे मेजबान भी मेरी वजह से ना गए। मगर मुझे बहुत जल्द मालूम हो गया कि जिस यकसुई की तलाश में मैं सरगर्दा था वो मुझे यहाँ भी ना मिलेगी। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आया और इस वक्त जरा गौर से उस मेज के सामान को देखा जो मेरे लिखने पढ़ने के लिए तैयार की गई थी। मेज पर निहायत कीमती कपड़ा पड़ा हुआ था जिस पर एक कतरा गिराना गुनाहे कबीरा से कम ना होगा। चांदी की दवात, मगर स्याही देखता हूं तो सूखी हुई। अंग्रेजी कलम निहायत कीमती और नायाब, मगर अक्सर में निब गायब। जाजिब कागज एक मखमली जिल्द की किताब में, मगर लिखने के कागज का पता ही नहीं। इसी तरह बहुत सा आला दर्जे का बेश कीमत सामान मेज पर था, मगर अक्सर उसमें से मेरे काम का नहीं था और जो चीजें जरूरत की थीं वो मौजूद नहीं थीं। आखिरकार मैंने वही अपना पुराना इस्तेमाली मगर मुफीद बख्श और अपनी मामूली दवात और कलम, जिसने अब तक निहायत ईमानदारी से मेरी मदद की थी और मेरे पर्या ख्यालात को तेजी के साथ कफसे कागज में बंद किया था, निकाला और लिखना शुरू किया। ये बयान करना जरूरी है कि जिन शोहरा की जबान इतनी शीरीं और दिलकश होती है कि सुनने वाला खिंचता चला आता है, उनकी इनायत से मैं खुश नहीं हुआ कि सब के सब मेरे कमरे के नीचे दरख्त पर जमा हो गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने लाख कोशिश करके उनकी तरफ से अपने कान बंद कर लिए और काम में हमातन मशगूल हो गया। मैं काम में मसरूफ था कि अचानक तन तन तन, तना तन, छन छना छन, तन 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 तन। मैं ऐसा मसरूफ था कि दुनिया और माफिया की खबर ना थी। यकायक इस तन तन ने चौंका दिया। ये क्या है? ओफो! अब मैं समझा कि मेरे कमरे के करीब शाकिर खान साहब के छोटे भाई का कमरा है। उन्हें मौसीकी में बहुत दखल है। इस वक्त सितार से शौक फरमा रहे थे, बहुत खूब बजा रहे हैं। कोई आध घंटा उन्होंने मौसीकी की मश्क फरमाकर मुझे मेरी ख्वाहिश के खिलाफ महजूस फरमाया। फिर किसी वजह से अपने कमरे से चले गए और खामोशी तारी हो गई। तो मुझे फिर अपने काम का ख्याल आया। ऐ मेरे ख्यालात, तू ही मेरा गंजीना, मेरा खजाना हो। खुदा के लिए रहम करो, मेरे दिमाग में फिर आ जाओ। ये कहकर मैं कागज की तरफ मुतवज्जा हुआ कि देखूं कहाँ छोड़ा है।
जिनकी कद्र आप कहाँ भूल पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे। ये क्या मुहामले फिक्रा है, ला हौला वला कुव्वता। मैं भी क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, आप कहाँ भूल पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे। ये फिक्रा तो शाकिर खान साहब ने किसी दोस्त से कहा था जो अभी उनसे मिलने आया है। मैं मसरूफियत में उसे ही लिख गया। हाँ, तो काट के फिक्रा दुरुस्त करना चाहिए। और जिनकी कद्र अभी तक मुल्क को कौम को मालूम नहीं हुई है। और बाहर कोई दरवाजा खटखटाता है, कौन है? मैं हूं शब्बन। सरकार ने कहा है कि अगर आपको तकलीफ ना हो तो नीचे जरा सी देर के लिए तशरीफ लाइए। कोई साहिब आए हुए हैं और सरकार उन्हें आपसे मिलवाना चाहते हैं। बादल नाखवास्ता में उठा और नीचे गया। शाकिर साहब के दोस्त साहब से मिलवाया गया, उनसे मेरा तारुफ करवाया गया। थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ ले गए और मुझे भी फुर्सत मिली और मैंने यकसू होकर लिखना शुरू किया। थोड़ी ही देर हुई थी कि शब्बन ने फिर दरवाजा खटखटाया। मालूम हुआ कि मेरी फिर याद हुई है। हमारे मेजबान के कई और दोस्त आए हुए हैं और मैं उन्हें दिखाया जाऊंगा। गोया मैं भी मिसल उस अरबी घोड़े के था जिसे मेजबान ने हाल ही में खरीदा था और जो हर दोस्त को इस्तबल से मंगा के दिखाया जाता था। इस दोस्ती से निजात पाकर और भागकर मैं अपने कमरे में आया। ख्यालात गायब हो गए थे। फिक्रा असरे नौ फिर बनाना पड़ा। तबीयत उचाट हो गई। बहजार दिक्कत फिर बैठा और लिखना शुरू किया। अब की मर्तबा खुशकिस्मती से कोई आध घंटा ऐसा मिला जिसमें कोई आया गया नहीं। अब मेरा कलम तेजी से चल रहा था और मैं लिख रहा था। हमको कामिल यकीन है कि हमारे मुल्क के काबिल नौजवान जिन्हें तफ्तीश और तहकीकात का शौक है और जो कोलंबस की तरह नई मालूमात और नई दुनिया, वो इल्मी दुनिया ही क्यों ना हो, दरियाफ्त करने के लिए अपने तईं दरवाजे पर फिर दस्तक। क्या है? अच्छा, दरियाफ्त करने के लिए अपने तय खतरे में डालने से भी खौफ नहीं खाते। जरूर इस तरफ मुतवज्जे होंगे और अपनी काविशों और कोशिशों से मौजूदा। दरवाजा फिर खटखटाया गया। हाँ, हजूर सरकार आपका इंतजार कर रहे हैं। खाना ठंडा हुआ जाता है। ओफो, मुझे ख्याल नहीं रहा। सरकार से अर्ज करना था कि मेरा इंतजार ना करें, मैं फिर खा लूंगा। इस वक्त मुझे कुछ ऐसी भूख भी नहीं और आइंदा नस्लों को ज़ेले बार एहसान करेंगे। यही नौजवान हैं जो कौम की कश्ती को खुदा की मदद पर भरोसा करके खतरात से बचाते और साहिल मुराद तक पहुंचाते हैं। जिंदगी और मौत का लायनहल मसला। दस्तक क्या है? सरकार कहते हैं अगर आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी उसी वक्त खाएंगे, मगर खाना ठंडा होके बिल्कुल खराब हो जाएगा। अच्छा भाई, लो अभी आया। ये कह के मैं खाने के लिए जाता हूँ, सबसे माजरत करता हूँ। मेजबान निहायत अखलाक से फरमाते हैं, चेहरे पर थकन मालूम होती है, क्या बहुत लिख डाला? देखो, मैं तुमसे कहता था ना कि शहर में ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ। सिवाय इसके कि मैं आमिना वो सद्दख ना कहूँ और क्या कह सकता था। अब खाने पर इसरार होता है। जिस चीज से मुझे रग़बत नहीं वही खिलाई जाती है। खाने के बाद मेजबान साहब फरमाते हैं, सहपहर को तुम्हें गाड़ी में चलना होगा। मैं तुम्हें इस वास्ते यहाँ नहीं लाया कि सख्त दिमागी काम करके अपनी सेहत खराब कर लो। वापस कमरे में आकर मैं थोड़ी देर इस गरज से लेटता हूँ कि ख्यालात जमा कर लूँ और फिर लिखना शुरू कर दूँ, मगर अब ख्यालात कहाँ। मजमून उठाकर देखता हूँ, जिंदगी और मौत का लायनहल मसला। इसके मुतल्लिक की क्या लिखने वाला था? इन अल्फाज के बाद कौन से अल्फाज दिमाग में थे? अब कुछ ख्याल नहीं कि इसको पहले फिक्रे से क्यों कर्ब पैदा करना था। यूं ही पड़े पड़े नींद आ जाती है। तीसरे पहर उठता हूं तो दिमाग बहुत सही पाता हूं। जिंदगी और मौत का लायनहल वाला मसला बिल्कुल हल हो जाता है। पूरा फिक्रा आईने की तरह साफ नजर आता है। मैं खुशी खुशी उठकर मेज पर गया और लिखना चाहता था कि फिर वही दस्तक। नौकर इत्तला देता है कि गाड़ी तैयार है सरकार, कपड़े पहने आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं फौरन नीचे जाता हूं तो पहला फिक्रा जो मेजबान साहब कहते हैं वो होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले। मैं सच्ची बात कहूं कि कुछ भी नहीं लिखा तो वो हंस के जवाब देते हैं कि आखिर इस कदर कसरे नफसी की क्या जरूरत है। मिल मिलाकर शाम को वापस आएं, खाने के बाद बातें होती हैं, सोने के वक्त अपना दिन भर का काम देखता हूं तो एक सफ़े से ज्यादा नहीं, वो भी बेरब्त और बेसिलसिला।
गुस्से और रंज में आकर उसे फाड़ देता हूँ और दूसरे रोज अपने मेजबान को नाराज करके अपने घर वापस चला आता हूँ। मैं नाशुक्रा और एहसान फरामोश कहलाया जाऊंगा, मगर मैं मजबूर हूँ, उस अजीज और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूंगा। मैंने जरा तफसील से इनका हाल बयान किया है, मगर ये ख्याल ना करना कि यहीं पर इन अहबाब की फहरिस्त खत्म हो गई जिनसे मैं रुखसत तलब कर सकता हूँ। नहीं, अभी बहुत से बाकी हैं। मसलन एक साहब हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलते, मगर जब आते हैं मैं उनका मतलब समझ जाता हूँ। ये हजरत हमेशा कर्ज मांगने के लिए आते हैं। एक साहब हैं जो हमेशा ऐसे वक्त में आते हैं जब मैं बाहर जाने वाला होता हूँ। एक साहब हैं जब मुझसे मिलते हैं कहते हैं, मियाँ अरसे से मेरा दिल चाहता है तुम्हारी दावत करूं, मगर कभी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक दोस्त हैं, वो आते ही सवालात की बौछार शुरू कर देते हैं। जब मैं जवाब देता हूँ तो मुतवज्जा होकर नहीं सुनते, या अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं या गाने लगते हैं। एक साहब हैं जो जब आते हैं तो अपनी ही कहे जाते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये सब मेरे इनायत फरमा और खैर तलब हैं, मगर अपनी तबीयत को क्या करूं? साफ साफ कहता हूं कि इनमें से हर एक से कह सकता हूं, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। कभी आपने भी चाहा कि लोग आपको बस अकेले छोड़ दें? सजाद हैदर यल्दरम की इस कहानी ने कैसा असर डाला? कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल लर्न उर्दू विद गज़नफ़र को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।